ایک فقیر روڈ پر کھڑا ہو کے آواز لگاتا تھا کہ 11 منٹ میں مالا مال ہو جاؤ، 11 بار پڑھ لو، اے اللہ والو 11 بار پڑھ لو۔ لوگ مذاق اڑا رہے تھے۔ میں نے اس فقیر کے پاس جا کر دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں، فقیر کا بتایا ہوا ایسا راز، ایسا خفیہ وظیفہ آج پہلی بار آپ کے حوالے کروں گا کہ 11 منٹ میں دولت کی ایسی بارش ہوتی ہے، غیبی دولت کے ڈھیر لگانے والا، 11 منٹ میں اثر کرنے والا دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ دیکھیں مجھے آپ سے کوئی بھی لالچ نہیں ہے، مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ رب کعبہ کی قسم اگر 11 منٹ میں آپ کی تقدیر نہ بدلی، رب کعبہ کی قسم میرے منہ پر تھوک دینا، میں آج آپ کو کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں دوں گا، میں غیب سے خزانوں کو لوٹنے والا ایسا عمل دے کر جاؤں گا کہ ساری زندگی دعائیں دو گے۔ دیکھیں مجھے یہ عمل 3 سال پہلے ملا۔ 3 سال پہلے مجھے فقیر نے کہا بیٹا 11 بار پڑھ لے تو مالا مال ہو جائے گا، اور میں نے گھر پہ جا کر جیسے ہی 11 بار پڑھ لیا، یقین کرے میرے دوستو بھائیو بہنوں، اسی دن میری تقدیر بدل گئی۔ 11 منٹ کے اندر اندر میرا ایک رشتہ دار آیا اور پورے 5 لاکھ روپے نقد دے کر گیا۔ یہ اس عمل کی پہلی کرامت تھی۔ اس دن کے بعد سے لے کر آج تک میں اس عمل کا دیوانہ ہو چکا ہوں۔ میں نے کوئی اپنی زندگی میں دن نہیں چھوڑا کہ میں اس دن یہ عمل نہ پڑھوں۔ آپ نے دیکھیں یا ربنا، اپنی زندگی میں یا ربنا کا وظیفہ آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج میرے غریب دوستوں، آج یا ربنا کا ایسا راز، ایسی تسبیح آپ کے حوالے کروں گا، رب کعبہ کی قسم غربت اور غریبی کی چینخیں نکل جائیں گی، لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے۔ آپ کے حاسدین، رشتہ دار یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ کل تک تو در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، کل تک تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، اچانک اس کی زندگی میں اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ میرے دوستو پوری دنیا کو میرا چیلنج ہے، میں پوری دنیا کو چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے دوستو ایسا عمل، ایسا وظیفہ تمہیں ڈھونڈنے سے نہ ملے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ تنہائی میں بیٹھ کر کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ دیکھیں چاہے پیر کو پڑھیں، منگل کو پڑھیں، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سارے ہی دن اللہ کے ہیں۔ جب دل کرے، جہاں دل کرے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اپنی ہر مشکل، ہر پریشانی کو دور کر دینے والا، ذاتی مکان کے لیے، قرضوں کے لیے، بیماری کے لیے، بے اولادی کے لیے، رشتوں میں بندش کے لیے، ظالم شوہر کو قدموں میں لانے کے لیے، ظالم روٹھے محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے، اپنی ہر مشکل پریشانی کو ایمرجنسی طور پر دور کرنے والا دنیا کا سب سے خاص عمل آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اب آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں آپ چاہے کسی بھی دن کریں، اپنے کسی بھی مسئلے کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے اس عمل کو پڑھیں اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگیں، انشاءاللہ بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی تو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، چاہے آپ وہ پڑھ لیں، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ میرے غریب دوستوں کوئی سا بھی درود شریف ایک بار پڑھ کر آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے غیبی خزانوں کو لوٹنے والے، ہر مشکل پریشانی کو دور کر دینے والے، دیکھیں اس عمل کا ایک ایک جملہ خزانے سے بھرا ہوا ہے۔ جب یہ سارے وظیفے اکٹھے ہو جائیں گے، دیکھیں آدھی منٹ لگتی ہے اس عمل کو پڑھنے میں، آدھی سے 1 منٹ میں اس پورے عمل کو انشاءاللہ پڑھ لیں گے اور ساری زندگی انشاءاللہ جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دیں گے۔ میرے قریب دوستو آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ کو سامنے اسکرین پر یا ربنا کا دکھ رہا ہے۔ آپ نے اپنی غربت میں، غریبی میں، فقیری میں، لاچاری میں یا ربنا کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج رب کعبہ کی قسم یا ربنا کے کمالات، معجزات دیکھنے والے ہوں گے۔ آج فقیر کے بتائے ہوئے اس عمل کا پہلا وظیفہ یا ربنا آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، لیکن میرے غریب دوستوں ایسے نہیں کہ تسبیح
पकड़ी और धड़ाधड़ शुरू हो गए। ना मेरे गरीब ना, आज जो तरतीब मैं आपको बताऊंगा उसी तरतीब से आपने पढ़ना है, चाहे ज़िंदगी में एक बार पढ़ें, चाहे इस अमल को रोज़ाना पढ़ें। अगर आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में, अपनी पूरी लाइफ में एक बार पढ़ लिया तो वादा है मेरा, सारी ज़िंदगी इस अमल के दीवाने हो जाओगे, इस अमल के बगैर रह ना पाओगे। अब आपने पहले नंबर पर मेरे गरीब दोस्तों जो मोजज़ाती वजीफ़ा अमल में शामिल करना है, ये वजीफ़ा सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, लेकिन उससे पहले आपने एक मर्तबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ने। देखें, आप दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें वो भी अच्छा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें वो भी ठीक है। देखें, आप कोई सा भी दुरूद शरीफ एक बार पढ़कर ये गैब से ख़ज़ानों को लूटने वाला मोजज़ाती अमल और इसका पहला वजीफ़ा, देखें आपने दुरूद शरीफ जैसे ही पढ़ लिया तो आपने वहीं बैठे बैठे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को भी लाजमी पढ़ना है। फिर आपने फौरी तौर पर अमल का पहला ख़जाना यानी कि या रब्बना आपने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज या रब्बना के कमालात मौजज़ात, देखें ये पूरा अमल या रब्बना का है जिसमें 2-3 ख़जाने यानी 2-3 वजीफ़े शामिल हैं। तमाम वजीफ़े बच्चों की तरह आसान है, एक एक वजीफ़ा बच्चा भी चाहे पढ़ ले, लेकिन तमाम वजीफ़े एक ही जगह पर बैठ कर पढ़ने हैं। जब आप दुरूद शरीफ पढ़ें तो उससे पहले आपने तन्हाई में बैठ जाना है, चाहे आधी रात को बैठ जाएं पढ़ने के लिए, चाहे दिन में पढ़ें, शाम में पढ़ें, रात में पढ़ें, किसी वक़्त भी किसी जगह भी तन्हाई में बैठकर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ें। इंशाअल्लाह गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी, गैब से दौलत वाले हाथ फौरी तौर पर दौलत लेकर हाजिर हो जाएंगे। अल्लाह वालों, अब आपने फौरी तौर पर अमल का पहले नंबर वाला मोजज़ाती वजीफ़ा जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, आपने या रब्बना को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आज या रब्बना के साथ आपने एक ऐसा जुमला, एक ऐसा ख़जाना शामिल करना है जिससे या रब्बना की ताकत 1000 नहीं करोड़ गुना बढ़ जाएगी। आपने सिर्फ इतना कहना है, या रब्बना मेरी झोली भर दे, या रब्बना मेरी झोली भर दे। आज अपने रब से आपने अपनी खाली झोलियों अलमारियों को भरवाना है। आज गैब से ख़जानों को हासिल करने वाले इस अमल का पहला ख़जाना सिर्फ 11 बार पढ़ना है, यानी 11 टाइम पढ़ना है, या रब्बना मेरी झोली भर दे, या रब्बना मेरी झोली भर दे, या रब्बना मेरी झोली भर दे। 11 बार पहला वजीफ़ा पढ़ते ही मेरे गरीब दोस्तों आपने वहीं बैठे बैठे गैबी दौलत की इस बारिश का दूसरा मोजज़ाती वजीफ़ा जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, अल्लाह पाक के 2 नामों को आपने मिलाकर पढ़ना है। मेरे दोस्तों सारे वजीफ़े ख़जानों से भरे हुए हैं। पीर फ़कीर के बताए हुए इस अमल का दूसरा वजीफ़ा गैबी दौलत की बारिश बरसाने वाला, हर मुश्किल हर परेशानी को 11 मिनट में हल कर देने वाला, 11 मिनट में इंशाअल्लाह कर्ज़े दूर, 11 मिनट में बीमारी दूर, बेऔलादी दूर, रिश्तों की बंदिश ख़त्म। अब आपने इस अमल का दूसरा ताकतवर वजीफ़ा जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, मेरे दोस्तों आपने इस अमल में सेकंड नंबर पर अल्लाह पाक का एक ऐसा नाम अमल में शामिल करना है जो गनी कर देता है, जो गैब से ख़जाने अता करता है। देखें, आपने अपनी ज़िंदगी में या गनियों को बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज या गनियों के कमालात मोजज़ात देखने वाले होंगे। आज या गनियों को पढ़ते ही इंशाअल्लाह फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मोजज़ा होगा, सारी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद ये गरीबी का दब्बा तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहेगा। मेरे दोस्तों, अब आपने या गनियों को अल्लाह पाक के एक ऐसे नाम के साथ पढ़ना है, या फताहू के साथ पढ़ना है। देखें, या फताहू अल्लाह पाक का वो नाम है जिसकी कसम रब करीम ने खुद खाई है कि कसम है मुझे अपने इस नाम या फताहू की कि जो भी या फताहू पढ़ के मुझसे मांगेगा मैं रब उसकी हर हाजत को, हर मुराद को पूरा कर दूंगा। आज मेरे गरीब दोस्तों आपने इस अमल में जैसे ही या रब्बना को पढ़ लिया
तो फौरी तौर पर या रब्बना मेरी झोली भर दे, या रब्बना मेरी झोली भर दे, या रब्बना मेरी झोली भर दे को 11 बार जैसे ही पढ़ लिया तो अब आपने वहीं बैठे बैठे गैब से ख़जानों को लूटने वाले इस अमल का दूसरा वजीफ़ा, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, आपने इस अमल में सेकंड नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, या गनियू या फ़ताहू, या गनियू या फ़ताहू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। ये ताकतवर वजीफ़ा मेरे गरीब दोस्तों आपने इस मुजर्रिब तरीन अमल में कितनी बार पढ़ना है, या गनियू या फ़ताहू को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। आपने ये गैब से ख़जानों को लूटने वाला वजीफ़ा इस अमल में मेरे दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़कर अमल का तीसरा मौजज़ाती वजीफ़ा देखें। मैंने आपको 2 वजीफ़े बता दिए हैं, 2 छोटे छोटे 2-3 वजीफ़े और बाकी हैं। ये सारे वजीफ़े आपने इस अमल में पढ़ने देखें। बाज़ औक़ात आप पर जादू होता है, बंदिशें होती हैं, बदनज़री होती है, रब की पकड़ में होते हैं अपने गुनाहों की वजह से, जिसकी वजह से कोई वजीफ़ा, कोई तस्बीह, कोई चीज़ असर नहीं करती। लेकिन आज का ये अमल रब काबा की कसम आपकी हर वो मुश्किल, हर वो परेशानी जो बड़े से बड़े वजीफ़े से दूर ना हुई, एक झटके में, एक लम्हे में बड़ी से बड़ी मुश्किल परेशानी को जड़ से दूर कर देगा। फौरी तौर पर हर मुश्किल, हर परेशानी को दूर कर देने वाला या रब्बना का अमल और अमल का दूसरा वजीफ़ा या गनियू या फ़ताहू को 11 बार पढ़ते ही अब आपने इस अमल का तीसरा ताकतवर वजीफ़ा, जिसे दौलत का एटम बम कहा जाता है, मेरे दोस्त अब आपने फौरी तौर पर इस मुजर्रिब तरीन अमल में पहला कलमा शामिल करना है। 11 मिनट में असर करने वाले इस अमल का तीसरा ताकतवर वजीफ़ा पहला कलमा देखें। पहला कलमा दुनिया के तमाम वज़ाहिब पर भारी है। पहले कलमे को अगर तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए और दूसरे पलड़े पर दुनिया की तमाम तस्बीहात, तमाम वज़ाहिब सब कुछ रख दिए जाएं तो पहला कलमा दुनिया के तमाम वज़ाहिब पर भारी है। पहले कलमे की मोजज़ात कमालात आज देखने वाले होंगे। आज पहले कलमे को बताई हुई तरतीब से पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा सारी दुनिया देखेगी। आज आपकी गुर्बत और गरीबी का इंशाअल्लाह आखिरी दिन होगा। आज के बाद ये गरीबी का दब्बा तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहेगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे गरीब दोस्तों, आपने दौलत के ढेर लगाने वाले, बड़ी से बड़ी मुश्किल परेशानी को दूर कर देने वाले इस अमल का तीसरा वजीफ़ा पहला कलमा अमल में 3 बार पढ़कर फौरी तौर पर अमल में देखें। तीसरे नंबर पर 3 बार पहला कलमा पढ़ते ही आपने सूरह कौसर को अमल में शामिल करना है। देखें, एक एक चीज़, एक एक जुमला बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। इस अमल को बतलाने समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन पढ़ने बैठेंगे चाहे किसी भी दिन पढ़ लें, किसी भी वक्त, किसी भी जगह तन्हाई में बैठ कर पढ़ेंगे तो 1 आधी मिनट लग जाएगी। लेकिन यकीन करें, ये सारी चीज़ें जब आप लोग एक ही जगह पर बैठ कर पढ़ेंगे तो आप पर ना बदनज़री रहेगी, ना जादू रहेगा, ना बंदिशें रहेंगी, ना रब की पकड़ में रहेंगे, ना बीमारी रहेगी, ना कर्जे रहेंगे मेरे दोस्तों, ना गरीबी रहेगी, ना कर्जा रहेगा। कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, जालिम जुल्म करता है, घर में गरीबी है, बीमारी है, लाचारी है, कोई भी मसला है, अमल के पढ़ते ही बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़ी से बड़ी परेशानी का इमरजेंसी तौर पर खात्मा हो जाएगा इंशाअल्लाह। देखें, इस वीडियो को आगे शेयर भी करें जितना हो सके अपने उन गरीब दोस्तों, भाइयों बहनों के साथ जो इस वक्त शदीद मुश्किलों में हैं, जो परेशानियों में घिरे हुए हैं, जिनके घरों में फाके हैं, गुर्बत है, गरीबी है, लाचारी है। खुदारा अपने बहनों भाइयों के साथ अल्लाह के लिए इस वीडियो को शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर करने से किसी की ज़िंदगी संवर जाए, किसी के हालात बदल जाएं और वो बंदा या बंदी सारी ज़िंदगी आपको दुआएं दे। अल्लाह वालों, बाप ने तीसरे नंबर पर जैसे ही पहला कलमा अमल में शामिल कर लिया 3 बार, तो आपने फौरी तौर पर गैब से दौलत के ढेर लगाने वाले इस अमल का चौथे नंबर वाला वजीफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। देखें, आपने अपनी ज़िंदगी में सूरह कौसर को बेशुमार बार पढ़ा होगा। सूरह कौसर के मौजज़ात बेशुमार हैं, लेकिन आज सूरह कौसर को आपने मेरे बताए हुए तरीके पर पढ़ना है। देखें, आप लोग जब भी गुर्बत में, गरीबी में, लाचारी में, परेशानी में होते हैं तो आप लोग सूरह कौसर को पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन आज आपने मेरे बताए हुए तरीके पर, बताई हुई तरतीब से पहले आपने 3 वजीफ़े जैसे ही पढ़ लें तरतीब तादाद में, तो फ़ौरन से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इन्ना
आतईनाकल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर, इन्ना आतईनाकल कौसर। मेरे दोस्तों, आपने फौरी तौर पर एक बार सूरह कौसर को पढ़ना है। अब आपने जैसे ही सूरह कौसर को पढ़ लिया तो मेरे गरीब दोस्तों, आपने फौरी तौर पर अमल का एक ही बार अमल में चौथे नंबर पर सूरह कौसर को पढ़ते ही आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। और फ़ौरन से मेरे गरीब दोस्तों, सूरह कौसर को पढ़ते ही आपने फौरी तौर पर अमल के अंदर अल्लाह पाक के दो नामों को शामिल करना है। ये दो नाम बड़े ही ख़ास हैं, ये इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। अगर इन दोनों नामों को इस अमल में शामिल ना किया तो पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। देखें, ये अमल 11 मिनट में क्यों असर करता है? क्योंकि ये दुनिया का सबसे अनोखा और मुनफरिद अमल है जो 11 मिनट में बेड़े पार कर देता है। 11 मिनट में बड़ी से बड़ी मुश्किल परेशानी को जड़ से दूर कर देता है। देखें, वजीफे से बहुत से लोग बताते हैं, लेकिन सीने के राज हर कोई नहीं बताता। अल्लाह वालों की वो तस्बीह, वो ख़जाने आपके हवाले करूँगा जो इंशाअल्लाह एक ही दिन में बेड़े पार कर देंगे। अब आपने अल्लाह पाक के दो नाम या रज़्ज़ाक़ू और या करीमो, ये अल्लाह पाक के दो नाम हैं मेरे दोस्तों। जैसे ही आप लोग सूरह कौसर को अमल में शामिल कर लें तो फौरी तौर पर अल्लाह पाक के ये नाम या रज़्ज़ाक़ू या करीमो, देखें, इन दोनों को आपने अलग अलग तो अपनी ज़िंदगी में बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज या रब्बना के इस मौजज़ाती अमल में आपने इस मुजर्रिब तरीन अमल में जैसे ही सूरह कौसर पढ़ लें तो तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा और अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए या रज़्ज़ाक़ू या करीमू को पढ़ना शुरू कर दीजिए। या रज़्ज़ाक़ू अल्लाह पाक का वो नाम है जिसका मतलब है रिज़्क़ देने वाला, गैब से ख़ज़ाने अता कर देने वाला। आप जब भी मुश्किलों में, परेशानियों में, गुर्बत में, गरीबी में, लाचारी में होते हैं तो आप अल्लाह पाक का ये नाम या रज़्ज़ाक़ू हमेशा पढ़ते हैं। लेकिन आज आपने सिर्फ या रज़्ज़ाक़ू नहीं पढ़ना, आज या रज़्ज़ाक़ू के साथ अल्लाह पाक का एक ऐसा नाम, देखें, जब ये दोनों नाम इकट्ठे हो जाएंगे तो गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। लोग दरवाजे बजा बजा कर पैसे देकर जाएंगे। या रज़्ज़ाक़ू या करीमो, या रज़्ज़ाक़ू या करीमो, या रज़्ज़ाक़ू या करीमो पढ़ते जाएं और दिल ही दिल में रब करीम से मांगते चले जाएं। मेरा यकीन है आज मांग मांग के थक जाओगे लेकिन रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। या रज़्ज़ाक़ू या करीमो, या रज़्ज़ाक़ू या करीमो को आपने सिर्फ 11 बार पढ़कर अमल का आखिरी वजीफ़ा जो कि ख़जाना है, ख़जाना, अगर इसे छोड़ दिया तो पूरा का पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक का एक नाम आपने अमल के आखिर में लाजमी शामिल करना है। देखिए, अगर खाने में नमक कम पड़ जाए तो पूरा खाना ख़राब हो जाएगा, और अगर इस अमल में ये नाम ना शामिल किया जाए तो पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। देखें, आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा वजीफ़ा पढ़ा है जो बादशाहों का वजीफ़ा हो, यानी कि अमीर तरीन लोग जिसे पढ़ के कामयाब हुए हों। देखें, बड़े से बड़े बादशाह, बड़े से बड़े बिलियनर लोग इस वजीफ़े को पढ़ के कामयाब हुए हैं। ये दौलत की बारिश को बरसाने वाला, गैब से ख़जानों को लूटने वाला इस अमल का सबसे आखिरी वजीफ़ा है। अल्लाह पाक का एक ऐसा नाम है जो फौरी तौर पर बड़ी से बड़ी मुश्किल परेशानी को एक झटके में दूर कर देता है। या हल्लल मुश्किलात, जिसका मतलब है ऐ मुश्किलों को हल करने वाले, ऐ बड़ी से बड़ी परेशानियों को दूर कर देने वाले। या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात पढ़ते जाएं और दिल ही दिल में रब करीम से मांगते चले जाएं। मेरा यकीन है आज मांग मांग के थक जाओगे लेकिन रब के ख़जानों में बिल्कुल कमी नहीं आएगी। या हल्लल मुश्किलात को सिर्फ 7 बार पढ़कर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर मांगते हुए इस अमल को कंप्लीट कीजिएगा। वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट्स में अपना नाम ज़रूर लिखिएगा, और मेरे इस चैनल को, मेरे दोस्तों गैबी मदद के वज़ाइफ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा ताकि मेरी न्यू वज़ाइफ की वीडियोज़ आपको रोज़ाना मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।